Hello there. So, yeah, it's gonna be a very, heart to heart sit and talk and for video today. So, okay, why does nobody talk about how figuring out life in your late teens would probably feel like, you know? Because I didn't know that figuring out life at 18 or soon to be 19 would feel like this. Overwhelming. That's the right word, seriously. Everyone says you're young and you have got time and everything, right? Although some people do say कि नहीं बेटा अभी बहुत बड़े हो गए हो, अभी तक फिगर आउट नहीं किया लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हारे. मैम calm down. Oh god, it's like a roller coaster of emotions that you know I don't even know how to explain this feeling. It's that shitty right now, you know. God. Why do I feel like I'm running behind? I recently started YouTube, but there are people who have started this YouTube thing way before than I did. Gonna turn 19 very soon, but there are people who are younger than me and have figured out this, at least seem to have figured out their lives. Ah, and I feel like, oh, I'm a late bloomer. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक ईयर का जो गैप पड़ा है ना बीच में, दिस वन ड्रॉप ईयर, दो आई गेव माई एवरीथिंग ओके, बट अभी भी वो गिल्ट रह रहा है कि ओ मैंने ड्रॉप ईयर लिया. एंड नाउ दैट गिल्ट is not letting me rest peacefully. Okay, that guilt is making me learn these skills. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो एक गैप ईयर लिया, नाउ आई एम नॉट एलिजिबल और नाउ आई डोंट डिजर्व to have any fun time. I don't deserve to have a rest day or a rest time. I need to constantly be moving all day long, and that I need to learn this, I need to learn that, I gotta be successful in life, I gotta do well in college, everything needs to go perfectly. It's freaking overwhelming. I kid you not. Oh my goodness. This was a good rant, I guess. But okay, we are feeling this thing, that's it. बहुत शिटी फील आ रहा है कभी कभी. अब मेरी कल से कॉलेज स्टार्ट होने वाली है, सो आई एम काइंड एक्साइटेड, बट मोर देन दैट आई एम स्कैर्ड. ओके, मुझे सच में डर बहुत लग रहा है क्योंकि यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल इन कॉलेज, राइट? अभी द थिंग इज़ कि होंगे कोई मेरे जैसे जो ड्रॉप ईयर लेके फिर मेडिसिन में नहीं हुआ तो फिर बायोटेक में आ रहे हैं, या फिर होंगे कुछ लोग जिनको सीरियसली ऐसे पहले से सोचा था कि नहीं हमको तो यही करना है, रिसर्च में ही जाना है एंड एवरीथिंग. या फिर होंगे कुछ मेरी तरह कंफ्यूज लोग. बट मुझे डर किस बात का लगा, मेरा ड्रॉप ईयर. तो आई फील ओल्ड, नॉट अ गुड थिंग, बट आई फील दैट वे. मुझे ऐसा लग रहा है व्हाट इफ पीपल मेक फन ऑफ मी देयर. Anyway, whatever it is, but we are going to acknowledge that feeling and कल डट के सामना करेंगे ये सारी चीज़ों का. I hope I do well, and I don't know. I am blank. I don't know what to do tomorrow. मैं अभी भी अपना बैग पैक डिसाइड करूँ, मैं कल कौन सा बैग लेके जाऊँगी, कल क्या पहन के जाऊँगी. I'm trying to make this good first impression. Like, what if I don't know how to talk to people? What if I don't know how to socialize? What if I can't, go and talk to people? What if I can't connect with people? God.
I hope I'm not the only one to feel this way, because I like to believe at least that many people would be going through this right now. And yeah, you know, but anyway, whatever it is, it was a good ranting session. But now let's step out of this and actually try to acknowledge this feeling rather than trying to remove this feeling out of our system. Perspective थोड़ा change करते हैं. I've thought about it a lot, and you know, we do feel like everyone around us seem to be going in multiple directions, right? Somebody are going in medicine, कुछ engineering में जा रहे, कुछ ये कर रहे, कुछ वो कर रहे, blah blah blah. But तुम्हें ऐसा लग रहा है that you are stuck at this one place. You don't have any escape. You know, मैंने अभी recently movie देखी इंटरस्टेलर. I know बहुत ज़्यादा लेट देखी है, but bro, good, amazing movie. I loved it. तो उसमें द एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो साइंटिस्ट जो गए थे स्पेस में, एट वन पॉइंट दे वर स्टक इन दैट स्पेस. एंड मुझे देख के ही इतना क्लास्ट्रोफोबिक लग रहा था. सो आई वंडर हाउ द पीपल इन रियल लाइफ हु हैव गॉन दैट फील्स दैट, राइट? बट ऐसी फीलिंग आती है like you are stuck and you don't have any help. You're crying for help, but nobody can help you. Even if they want to, they can't. Okay, this is this feeling. But I feel that it's important to even acknowledge this feeling as well, क्योंकि feeling happy emotions every time is not possible. और तुम्हें जो ऐसे कभी कभी ये फीलिंग्स आती है, गुस्सा आता है, कभी दुख होता है कोई चीज़ का. सो उसे अंदर रखने से कुछ नहीं होने वाला है. कुछ ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है. रादर हमको ये फिगर आउट करना है कि हाउ डू वी यूज दैट फीलिंग टू help us with our current situation. I don't know. मैंने अभी recently LinkedIn पे इनफैक्ट एक पोस्ट पढ़ी थी दैट पीपल से कि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव सोचना है. बट दैट पर्सन हु हैड पोस्टेड दिस सेड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने हर बार अगर मुझे कभी गुस्सा है, मैंने उसको कन्वर्ट किया अपने कामों में. मुझे कभी किसी से जेलसी हो रही, मतलब क्यों जेलसी हो रही, आई विल डू बेटर. And they have turned their weaknesses or their so-called bad emotions into the strengths. उनको वही negative emotions were the emotions that actually made them to work harder and got them to where they are today. तो नेगेटिव इमोशंस हम जैसे बोलते कि गुस्सा है नेगेटिव इमोशन है, दुखी है नेगेटिव इमोशन है, जेलसी है नेगेटिव इमोशन है. वी आर ह्यूमन्स, ओके? वी आर मेंट टू हैव दीज इमोशंस. वी आर मेंट टू फील दिस वे एट सर्टन टाइम्स. तो आई वुड से टर्न दैट इनटू स्ट्रेंथ, ठीक है? और कभी भी फेलियर्स आ रहे तुम्हें कि ओ माई गॉड, आई एम फेलिंग एट लाइफ, I don't know what to do next. I have no idea where things are going. And मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मार रही because I know what these things feel like. Okay, I've been through those things. I'm literally experiencing these things right now. So I know what I'm talking about. The thing is कि I've tried this with myself कि ठीक है, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि you have failed. Okay, you have failed at certain things. तुम्हारा बहुत बड़ा कोई सपना है वो टूट गया है. अभी you are clueless. You are absolutely clueless. You do not know what to do now. The thing is, first of all, accept it. Acceptance is the key.
ठीक है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट सिचुएशन। तुमने मेहनत करनी थी, तुम्हें मेहनत करनी थी, तुमने करी नहीं करी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुमने जो किया सो किया। अभी अभी क्या कर सकते हो, अभी कुछ नहीं कर सकते तुम उसका, ठीक है। तो अभी वाई मी, ओ माय गॉड, मेरे मेरे नसीब ही ऐसे है, भगवान जी हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर। डू नॉट ब्लेम एनीबडी, डू नॉट ब्लेम द सिचुएशन। कुछ भी हो गया, जस्ट सिट इन साइलेंस, ओके। आई वुड सजेस्ट, आई हैव डन दैट। एंड तो अकेले बैठो एक रूम में जाके, अपने आप को भले बैठ जाओ अकेले, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, जो करना है करो। अकेले बैठ के पहले तो एक्सेप्ट करो कि हाँ जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज द की। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कोई भी सिचुएशन का, तब तक आगे उसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है, ब्लेमिंग से क्या होगा, तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई होगा, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं जो भी वो मेरी गलती थी नहीं, यू आर ट्राइंग टू एस्केप दैट सिचुएशन बाय ब्लेमिंग समबडी एल्स। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ओके, डू नॉट डू दैट। द थिंग इज कि ठीक है, हुआ सो हुआ। वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में पहले तुम्हें टाइम लगेगा, ठीक है। अगर स्पेशली लेट्स से अगर मेरा सपना था मुझे डॉक्टर बनना, और मुझे पता चला दैट आई एम नॉट गोना बी अ डॉक्टर एनीमोर, एटलीस्ट नॉट अ मेडिकल डॉक्टर एनीमोर, तो इट फेल्ट वियर्ड, इट फेल्ट एक्सट्रीमली बैड, क्योंकि आई एसोसिएटेड माई आइडेंटिटी विद दैट वन थिंग, एंड दैट डिडंट टर्न आउट वेल, ठीक है। मैंने बचपन से ही अपने आप को, और मेरे घर वाले सब, ये डॉक्टर बनेगी, ये डॉक्टर बनेगी, डिसअपॉइंटमेंट टू द फैमिली, डिसअपॉइंटमेंट टू द फैमिली। तो अभी ठीक है, वो सब हुआ, जाने दो, ठीक है। जो भी हुआ, तुम्हें रोना आ रहा है रो लो, गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा कुछ अपने आप को हार्म मत करना, बट ठीक है, दुख होगा, रोना आ रहा होगा, कर लो, भड़ास पूरी निकाल लो, बट एक दिन बाद, 2 दिन बाद, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, एक महीने एक्सेप्ट करो। जब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे। एक्सेप्टेंस फर्स्ट थिंग, हो गया वो। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, अब ये हो गया, अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ, ओके, मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। और फिर तुम सोचना शुरू करो कि ठीक है, ये तो चलो हो गया, अभी मैं आगे क्या करना है, ओके। उसके पहले एक स्टेप आता है कि ये क्यों हुआ, तुम्हारी कोई गलती थी। अभी इसको ब्लेम गेम मत बोल देना, आपने अभी बोला कि नहीं हमको किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्या कैसे, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। एक्सेप्ट करो, फिर तुम सोचो कि तुम्हारी क्या गलती रही है इसमें, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो पहले तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ। सेकेंड, आई सैट एंड मैंने वो चीज़ें नोट डाउन तो नहीं, बट सोची कि ठीक है, मेरे से क्या क्या गलती हो गई थी, ओके। और ऐसी गलती मैं अभी कुछ भी करूँगी उसमें नहीं दोहराऊँगी, ठीक है। जाने अनजाने में, ऑफ कोर्स कोई जानबूझ के वो चीज़ नहीं करता है, राइट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मिस्टेक। तो जाने अनजाने में जो भी हुआ, ठीक है, नोट डाउन कि अभी मुझे ये गलती आगे से नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड थिंग, कि अभी मुझे क्या करना है, देखिए मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, नीट का फेलियर मैंने पहले एक्सेप्ट किया। सेकेंड चीज़ मैंने नोट डाउन किया कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। हाँ, एनटीए का भी बहुत बड़ा हाथ था, बट वील कीप दैट असाइड फॉर अ वाइल। मेरे से क्या गलती होगी, क्योंकि एनटीए ने जो भी किया उसके बावजूद बच्चे सिलेक्ट तो हो रहे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो नहीं रहा था। तो वो सिलेक्शन कैटेगरी में मैं क्यों नहीं आ पाई, ठीक है। दैट्स द सेकेंड थिंग। वो फिर थर्ड थिंग आती है कि ठीक है, मैंने रोना धोना कर लिया, भले ये हुआ वो हुआ करके जो करना था कर लिया। सेकंड, मैंने अपनी मिस्टेक्स भी नोट डाउन कर ली। अभी थर्ड, कि ठीक है, ये 2 चीज़ें तो हो गई, बट अभी मुझे आगे क्या करना है अपने करियर के साथ। करियर में कुछ तो करना ही है ना, वो तो अभी भी है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ नहीं हो सकता, नहीं।
ये करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। दुनिया की तुम्हें दो बातें सुना के जाएगी, लेकिन उनको सुनाने के अलावा और कुछ काम होगा नहीं, ठीक है। उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जो बिगड़ने वाला है तुम्हारा बिगड़ने वाला है, जो बनने वाला है तुम्हारा बनने वाला है। भले तुम्हें बाहर वाले आके तुमसे जितना भी कह ले कि नहीं बेटा हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ये है वो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। सीरियसली, वो दो इंसानों के अलावा और तीसरे तुम, ये तीन इंसानों के अलावा और कोई भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा जीवन में क्या हो रहा है। उनको बस आके ताने सुनाने, तुम अच्छा करो तो अरे बेटा वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन करके चले जाना। उनकी लाइफ कुछ अफेक्ट नहीं हो रही है तुम्हारे डिसीजन से। तो पहली बात तो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग आके हमें क्या बोलेंगे, वो बोलना तुम बंद कर दो सीरियसली। कि अच्छा मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी ये कर लेता हूँ, अच्छा मेरा फ्रेंड इस कॉलेज में गया था तो मैं भी इस कॉलेज में जाऊँगा, अच्छा मेरे फ्रेंड ने के पास ये, मैं भी एक बुलशिट। ओके, बुलशिट। पहली बात तो लोगों के पीछे भागना बंद करो, बार बार लोगों से एडवाइसेस लेना बंद करो, ठीक है। मैं ईगोइस्टिक बोल होने का नहीं बोल रही कि हाँ मुझे सब पता है, नहीं, वो सब होने का मैं नहीं बोल रही हूँ। बट यू नो एवरी स्टेप ऑफ द वे यू गो, हाँ अब मुझे बता दो अब मैं क्या करूँ, हाँ अब मुझे बता दो अब मैं क्या करूँ। नहीं, कोई तुम्हें नहीं बता पाएगा तुम्हें क्या करना है। कोई भी तुम्हें तुम्हारे लिए वो तुम्हारा करियर रूट डिसाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब तुमने ये कर लिया, अब तुम जाके वो करो, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ना ही तुम्हारे पेरेंट्स कर पाएंगे, तुम ही हो जिन्हें वो सब करना है। ऑलराइट, तो प्लीज किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो। कोई बोले कि तुम ऑनलाइन कोचिंग ले लो, तुमने ऑनलाइन ले लिया, कोई बोले तुम्हें ऑफलाइन करना है तुम ऑफलाइन करो, कोई बोले कि नहीं मैंने तो ये टीचर से पढ़ा था, तुम भी वो टीचर के पीछे भाग जाओ। नहीं, उसके लिए वो सूट किया, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो सूट करेगा, ठीक है। एक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, एक इंडिपेंडेंसी रखो कि नहीं मुझे खुद पे ही डिपेंडेंट रहना है एटलीस्ट तुम्हारे डिसीजंस के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि लोगों की बात मत सुनो, कि वो जो एडवाइस दे रहे मत सुनो, नहीं सुनो, लेकिन जो काम का है वो स्टोर करो, जो काम का नहीं है वो फिल्टर आउट करके बाहर निकाल दो सीरियसली। बट वरना 10 लोग हैं, तुम 10 लोगों की बातें सुनने जाओगे, तुम सिर्फ कंफ्यूज ही तो होने वाले हो एंड में। डोंट डू दैट, ओके, फॉर योर ओन सेक डोंट डू दैट। नाउ नेक्स्ट थिंग कि अभी ये तो हो गया फिगरिंग आउट, और फिगर आउट करने का तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुरंत वो तुम्हें सपने में आ जाएगा कि हाँ, ऐसा नहीं होगा कि एक ओवरनाइट तुम्हें पता चल जाएगा वो तुम्हें क्या करना है, नहीं होगा। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ वर्क। तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा कि अच्छा ये नहीं है तो अभी इसके रिलेटेड क्या कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अभी नीट नहीं हुआ तो अभी क्या मुझे मेडिकल लाइन में ही कुछ करना है, कि रिसर्च लाइन में कुछ करना है, कि मुझे और कुछ करना है, कि मुझे अभी साइंस ही नहीं करना, मुझे कॉमर्स करना है, या फिर मुझे अभी बीबीए बीकॉम कुछ करना है, या फिर मुझे आर्ट्स की लाइन में जाना है, या फिर मुझे अभी क्रिएटिव कुछ करना है। वो सब तुम डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करोगे? इफ यू वांट आई कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, बट एक नटशेल में इफ आई टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट विद योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि अच्छा मैं कौन इंसान हूँ, तब तक ये सब नहीं होने वाला। सिट विद योर सेल्फ, तुम देखो कि तुमने अभी तक का जो पाथ किया है, अच्छा तुमने फॉर एग्जाम्पल नीट किया, जेई किया, सीए किया, जो भी किया, क्या वो तुम्हारा खुद का चुना हुआ पाथ था कि किसी और ने किया इसलिए तुमने कर लिया, या फिर कोई रिलेटिव या तुम्हारे पेरेंट्स ने आके बोला इसलिए तुमने कर लिया? फिगर दैट आउट फर्स्ट। और अगर वो तुम्हारा पाथ था ही नहीं तो फाड़ में जाए अभी वो चीज़। अभी क्या करना है, वो बैठ के पेन पेपर की ज़रूरत पड़े तो उस पर लिखो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ों का पैशन है। बहुत सारे करियर टेस्ट भी आते हैं, आई वुड सजेस्ट करियर काउंसलर के पास जाओ, यू फिगर आउट कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि दैट्स दी मोस्ट रिलायबल वे। अगेन अच्छे करियर काउंसलर के पास जाना, ऐसा नहीं कि वो तुम्हें बस सारी लिस्ट बता दो कि हाँ ये है इसमें से कुछ भी कर सकते हो, वो ऑनलाइन पे मिल सकती है। तुम पहले अपनी पर्सनालिटी को जानो कि अच्छा मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे कौन सा करियर सूट करेगा। ओके, दैट्स वी लॉन्ग थिंग, वो बहुत ऐसे वास्ट
अगेन टॉपिक है, तो वो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। वो फिगर आउट कर लिया एक बार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद तुम अभी सिर्फ वो एक चीज़ पे फोकस करो, मूव ऑन करो, अच्छे से मूव ऑन करो। फिर ये मैं सोचने बैठूँ क्या रे अभी मेरे से वो नहीं हुआ था, आई एम अ फेलियर। डू नॉट कॉल योर सेल्फ दैट। आई हैव कॉल्ड माई सेल्फ दैट इन नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई एम नॉट हैप्पी with the way I treat myself earlier. Please don't do that. तुम्हारी अगर if somebody junior to me is watching this, whatever, consider me your friend, your elder sister, whatsoever, but please don't do that. Even if somebody senior from me is watching this, I hope you know better, but if you don't freaking do that. Please do not do that. And जब तक बात आई कि अच्छा अभी एक मेरे साथ ये चीज़ हुई थी कि मुझे बचपन से यही पता था कि डॉक्टर का क्या करना है। तो अभी मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही सोचा था कि अच्छा डॉक्टर, इसका फर्स्ट स्टेप ये है, फिर ये स्टेप है, फिर वो स्टेप है, फिर वो स्टेप है। मुझे और एज सच करियर के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अभी इवन आई एम क्लूलेस। मैंने बायोटेक ले लिया, मैंने उस पर रिसर्च करी, अच्छे खासे खुद की रिसर्च करके मैंने बायोटेक लिया, बट आई एम क्लूलेस कि व्हाट्स गोना बी नेक्स्ट फॉर मी। तो डर लगता है कभी कभी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ डरना मत, डरो, डर लग रहा है डरो, लेकिन वो डर के सामने झुक मत जाना। वो डर लग रहा है ये सोच के वो चीज़ को क्विट मत कर देना। वो डिफरेंट पाथ है, ये डिफरेंट पाथ है। प्लीज़ अपने आप को कंपेयर मत करना किसी के साथ कि अच्छा उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, ये अच्छा कर रहा है, उसके कंपैरिजन में तुम्हें लग रहा होगा तुम अच्छा नहीं करो, इसकी लाइफ सेट है। उन किसी की लाइफ सेट नहीं है भाई। मुझे लगता था मेरे से बड़े जो लोग हैं उनकी लाइफ सेट है, नहीं है। जब मैं छोटी थी मुझे ऐसा लगता था, अभी मैं उस स्टेज पे हूँ, पता है नहीं है। अब मैं बड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छोटे वालों की लाइफ सेट है, किसी की लाइफ सेट नहीं है। ठीक है, एवरीबडी इज फिगरिंग आउट। वी ऑफन थिंक दैट action happens once you are clear, once you get that clarity, but that's not the truth. Clarity comes through action. तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुझे एक बार क्लैरिटी मिल गई कोई चीज़ की, फिर मैं करूँगा ये चीज़, वो परफेक्शनिस्ट तुम्हें जो बनने का बोलते हैं ना, हाँ तुम्हें एक बार परफेक्शन गेन कर लो उसके बाद तुम चीज़ें करो, नहीं होगा। दैट्स a way of procrastination. You are gonna end up procrastinating that thing for a really, really long time. I'm saying that from my own personal experience. Okay? Don't do that. Please do not do that. Okay? एक बार तुम action लो. Once you have 70% knowledge of that thing, take the action. The rest 30% you'll figure out on your way. ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो कि अरे मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे स्टार्ट कर दूँ, मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि अंधेरे में तीर मार लो। थोड़ा नॉलेज लो, 70% जितना वो चीज़ का नॉलेज लो बिफोर स्टार्टिंग दैट आउट। वंस यू acquire that knowledge, you move on and you start doing that. The rest 30% that you are yet to figure out, you will figure out. You will figure that out by doing it. You will figure that out by taking that action. You will figure that out on your way. ठीक है, बाकी ऐसे परफेक्शनिस्ट बनने मत बैठो कि हाँ मैं एक बार पूरा 100% फिगर आउट करूँगा फिर वो चीज़ करूँगा। वो चीज़ कभी नहीं होती, बिकॉज every single time you will even think about it, you will feel like no I'm not ready yet, no I'm not ready yet, no I'm not ready yet. फिर you are never gonna be ready for it, and by the time you are ready you won't do that. You won't feel like doing it anymore. So just say yes to certain opportunities. Just say yes even if you're not feeling ready for it right now. Okay, trust me on this, you will figure it all out on your way. All right, that's it for today from my side, and bye. Take care, stay happy, stay healthy.